Hello, everyone. Good evening. Namaste. All of you, the visionary commanders. Yes. So, welcome to the final and the most powerful day of our Vision Mission Workshop. So, are you ready to blast off? Yes. If you are ready to reach the stars, show me the rocket pose. Yes. Make a rocket pose from your hands. Don't be shy. Yes, yes, we have to. Well, look at the energy of yourself, right? Today is not just the last day, it is the beginning of our journey. Yes? So let's get ready. Well, before we move on, yesterday, all of you learned from the heart of Ratan Tata. Yes? उनके दिल में जो उनकी वैल्यूज थी, जो फीलिंग्स थी पूरी दुनिया के लिए, right? We have learned a lot. And today, we are going to learn from the mind of the man who wants to colonize Mars. Elon Musk. Yes, Elon Musk. One of the most powerful names of today. Well, I want to see the future leaders of 2030 right now. So I want all of you to switch on your cameras first. Let's do it. Yes, switch on your cameras. No one to be hiding behind the camera screen. Yes, come in front. Okay, let me see your glowing faces today. All of you. Lovely. Okay. So you are the chosen few. You know that? You are the chosen few who didn't just dream. You showed up for 3 days straight. Give yourself a thunderous round of applause. That's a wonderful dedication from your side. Great. Okay. So first, to understand Elon Musk, we need to break the law of gravity. I hope all of you know about the gravity. Yes. Gravity is the force that keep all of us grounded on the land. Okay. It is the force of earth which keeps us attracted towards its center. Right. So keep us grounded. Okay. So today is day 3. And we are not going to miss our ultimate declaration today also. Because, reminding yourself about your own values and your own priorities is very, very important. Every day, we need to take the oath for ourselves. Right? हमें अपने लिए अपने आप को कुछ चीजें हमेशा याद दिलानी पड़ती हैं, बार बार याद दिलानी पड़ती हैं. Right? So, let's do it again. Place your hand on your heart, look straight into the camera, and repeat after me with total conviction, right? We should believe also. Okay, what we are saying, we have to believe. Okay, repeat after me. I am a master of my destiny. Master of my destiny. I choose courage over fear. Courage or fear. Impossible is just an opinion, not a fact. I will fail, I will learn, but I will never quit. I will never quit. ये सभी अपने अनम्यूट कर ले, आवाज भी आनी चाहिए सभी की. अनम्यूट करके बोले सभी. My vision is greater than any obstacle. Greater. My vision is greater than I am the architect of a better world. I am the architect of a better world. I am a visionary. I am a visionary. Now we have reached the peak of our mission to show us how to build rockets out of our dreams and how to stay visionary for the rest of our lives. Please join me in welcoming the women who has mentored thousands of souls. Retired principal, NLP grandmaster, and your life coach, Madam Sudesh Sharma. We welcome you, ma'am. Over to you. Okay, thank you, Prachi, for doing warm welcome and greeting the students. वेलकम बच्चों, वेलकम 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 मेरे सभी जाबाज कमांडर्स का वेलकम, सुपर हीरोज का वेलकम और उनके डियर पेरेंट्स
उनका भी बहुत बहुत स्वागत है द विजन मिशन के तीसरे और सबसे बड़े दिन में। कल आपने व्हाट्सएप में बड़े मैसेज भेजे, बड़ी सीट्स अपनी पूरी कर करके भेजी, मैं बहुत खुशी हुई। किसी ने और हेल्प भी की, कम्युनिकेशन ब्रिज भी बनाया, वेरी गुड। किसी ने मम्मी की मदद की, किसी ने पापा की और आज आपने बहुत सुंदर काम किया है। आगे बढ़ रहे हैं दिन पे दिन और आज एक नया कुछ लर्निंग के लिए आप आ गए हैं, टाइम पे आए हैं, इसलिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। आप अपने लिए क्लैपिंग करें। वाह। और बच्चों, आज आज हमारा जो रॉकेट है, जो हम रॉकेट उड़ाना शुरू किया था शुरू के दिन में मिसाइल मैन के साथ में, आज वो पृथ्वी की सीमाओं को पार करके सीधे पहुंचा मंगल ग्रह पर, मार्स पर। आज की जो हमारी यात्रा है उसका नाम है द मार्स माइंडसेट। आज हम एक ऐसे इंसान की शक्ति को अपने अंदर जगाएंगे जो दुनिया के सबसे अनोखे विजनरी हैं। वो अभी है जो 2 दिन हम पहले पढ़ रहे थे, वो तो अपना बेस्ट करके जा चुके हैं, लेकिन एलॉन मस्क अभी भी कार्य कर रहे हैं और वो जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। बच्चों, ये हमारे लिए एक लाइव एग्जाम्पल है। आज हम एक ऐसे उस इंसान की शक्ति को अपने अंदर महसूस करेंगे। वो ऐसी चीजें सोचते हैं जो इंसान सोच भी नहीं सकता। आज क्या आप अपने दिमाग में सोचने की शक्ति की लिमिट को तोड़ना चाहेंगे? तैयार हैं? तो चैट Yes. बॉक्स में लिख दीजिए रेडी। फटाफट लिखिए चैट बॉक्स में रेडी, या फिर दोनों मुट्ठियां बंद करके और छोड़ दीजिए आसमान में यस। देखो, जितना जोश आप दिखाएंगे उससे ज्यादा हम दिखा देंगे। बच्चों के अंदर जोश होता है तो हमारे अंदर और ज्यादा जोश होता है बच्चों। तो आप सब तैयार हैं और हम भी तैयार हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहला एक बहुत सुंदर सी एक्टिविटी, इनोवेशनल लैब की। अब आप देखिए, मेरे हाथ में एक चीज मैं आपको दिखाऊंगी, वो पहचानना क्या है। ठीक है, सभी तैयार हो जाएं। बहुत सुंदर एक्टिविटी रहेगी, सब तैयार हो। ये क्या है, क्या दिख रहा है आपको? ये Spoon. Spoon. स्पून। सभी ध्यान से देख लीजिए, स्पून है ये। ठीक है, Spoon. दिस इज स्पून, और जिससे हम रोज खाना खाते हैं ना। लेकिन आज आप सब साधारण बच्चे नहीं हैं। आज आप इनोवेशन लैब के साइंटिस्ट हैं। ठीक है, तो नियम समझ लेते हैं पहले इस एक्टिविटी का। सबसे पहला नियम, ये चम्मच खाना खाने के लिए तो इस्तेमाल होती ही है, सब जानते ही हैं, लेकिन अगले 1 मिनट में इस चम्मच के 3 अनोखे इस्तेमाल आपने सोचने हैं। यानी खाना खाने या रसोई के काम से बिल्कुल अलग होने चाहिए। रूल नंबर 2 क्या रहेगा? आपका आइडिया जितना अजीब, जितना मजेदार और जितना अलग होगा, आप उतने ही बड़े साइंटिस्ट होंगे। गेम खेल सकते हैं। यस, अभी आप सोच सुनो, तीसरा रूल और सुन लो। जैसे ही आपके दिमाग में 3 आइडिया आ जाएं, तुरंत चैट बॉक्स में टाइप करना शुरू कर देना या हाथ उठा लेना। और पेरेंट्स, आप कमांडर्स हैं हमारे, आप बच्चों की सोचने में मदद तो करें, आइडिया बच्चे का ही होना चाहिए। ठीक है, तो मेरे साइंटिस्ट, आपका समय शुरू होता है अब। आप सोचना शुरू करें। 1 मिनट में 3 यूजी सोचना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
51, 52, 53, 50। चलिए, कोई लिख रहा है प्लेइंग, कोई कहता है गेम, कोई कहता है केक में कुछ क्या बता रहा। स्पून कैन बी यूज कटिंग फॉर के सेल्फ डिफेंस, और सेल्फ डिफेंस में भी यूज कर सकते हैं। वेरी गुड। और बताइए, बच्चों ने साइंटिस्ट वाला दिमाग चलाना शुरू कर दिया है फटाफट म्यूजिक के लिए। वाह 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 वाह, म्यूजिशियन माइंडसेट है इसका। आर्यन लिख रहा है म्यूजिक, ढोलक बजाते हैं, वेरी गुड। और बताइए, और बताइए, स्टीयरिंग, डेकोरेशन, DIY, ओजस्विनी, डेकोरेशन सैमसंग SM बता रहे हैं, और शो पीस बन सकते हैं। अच्छा जी, वेरी गुड। आप नाउ आप रुक जाएं, और आप सबके लिए एक जोरदार ताली बजाएं। देखो, एक चम्मच से आपने कई यूजेस बताए। अभी कौन एक बोल के कौन कौन बताएगा? इससे भी अलग जो मैंने पढ़े उससे अलग कौन बताएगा? उससे अलग कौन बताएगा? थोड़ा सा और साइंटिस्ट वाला दिमाग चलाइए, और क्या क्या यूज हो सकता है? टेल मी फास्ट। build a straight line. स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन कैसे होगी भाई? स्ट्रेट लाइन बन जाएगी। Full painting. हाँ, यस, प्राची बताएगी नई नई चीज। Full painting. वेल, मैंने कई बार स्पून को स्क्रू खोलने के लिए भी यूज किया है। स्क्रू को स्क्रू ड्राइवर बना दिया इसका। अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई यूज? Full painting. पेंटिंग बनाई क्या इससे? वाह। मैम, दूध की किनारे की मलाई निकालते ना टोपिया में, उसके रिव्यूज है। वाह, स्क्रबिंग, फॉर स्क्रबिंग। आपने स्क्रैच करने के लिए भी यूज कर लिया इसके, हैं? वेरी गुड। देखा, चलाना दिमाग, और भी चल सकता है तो। मेजरमेंट मैम, हर चीज का सर्फ है कुछ और भी। For cutting. हाँ, ये For मेजर के cutting लिए भी, cake. ये For cutting cake. यस मैम यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। मैम उस स्पून को थोड़ा सा काट के छिल्ला निकालने के लिए यूज होता है। हाँ, Measuring बोलिए, वीर वीडियो ऑन करके बोलना जरा। मेजरिंग के लिए यूज हो सकती है। मेजरिंग के लिए तो हो गया, वो बता दिया। नई चीज बताइए। मैम स्पून को कट करके हाँ, ये छील निकालने के लिए हो सकती है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, सभी का जो दिमाग चला है बहुत अच्छा। यही साइंटिस्ट का दिमाग है कि जो चीज है उससे हम और भी कई काम ले सकते हैं। और क्या किसी ने ये भी सोचा है कि इसको हम मिट्टी खोद के पौधा लगा सकते हैं? ये सोचा किसी ने? यस मैम। इससे भी ऐसे थोड़ा मिट्टी निकाल के उसमें पौधा भी लगा सकते हैं, इसका ऐसे भी यूज हो सकता मैंने भी सोचा था। है। हाँ, देखा, ठीक है, बहुत अच्छा। देखो, स्पून एक था, लेकिन इसके हमने कई तरीके बना दिए। चम्मच नहीं बदला, स्पून नहीं बदला, क्या बदला? हमारा सोचने का तरीका। ठीक है, तो आज का जो महामंत्र है वो यही है कि इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हमारे सोचने का तरीका अलग होना चाहिए। एक आम इंसान की समस्या को देखकर रोने लगता है, हार मान जाता है, लेकिन मार्स माइंडसेट वाला कहता है नहीं, रास्ता नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, नया रास्ता बनाएंगे। ठीक है ना बच्चों? आज हम एक ऐसे पागल, देखिए मैंने पागल शब्द का यूज किया है, आज हम एक ऐसे ही पागल, हाँ दुनिया उसे पागल ही कहती थी, आज उस पागल विजनरी की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसने ये कहा था कि मैं इंसानों को मंगल ग्रह पे लेके जाऊंगा। तो पूरी दुनिया उन पर हंसी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका नाम है इलॉन मस्क। तो चलिए, अपनी बेल्ट बांध के कल बैठ जाइए, क्योंकि हमारा रॉकेट अब उस अद्भुत यात्रा के लिए उड़ने जा रहा है, जानेंगे उसके बारे में। तो सुपर हीरोज, हमारा रॉकेट अब सीधा पहुंच चुका है स्पेस एक्स के लॉन्च पैड पर, जहां दुनिया का सबसे अनोखा साइंटिस्ट खड़ा है जिसका नाम है इलॉन मस्क। आज हम सब जानते हैं कि इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर इंसान है, टेस्ला कार बनाते हैं, उनके रॉकेट अंतरिक्ष में जाते हैं। लेकिन आज से कुछ साल पहले जब उन्होंने कहा कि मैं इंसानों को मंगल ग्रह पे लेके जाऊंगा, रॉकेट उड़ाऊंगा, तो जानते हो क्या हुआ?
दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिक हंसने लगे, मजाक उड़ाने लगे। लोगों ने कहा तुम पागल हो, तुम कोई रॉकेट बना सकते हो? रॉकेट बनाना सरकार का काम है, किसी अकेले इंसान के बस की बात नहीं है ये। लेकिन इलोन मस्क के पास क्या था? एक राइट माइंड सेट। क्या था उसके पास? एक राइट माइंड सेट। और उसने राइट माइंड सेट क्या होता है? जो डरे नहीं, हार न माने, वो होता है राइट माइंड सेट। उन्होंने अपनी सारी कमाई लगा के एक पहला रॉकेट बना लिया, सब लोग देखने आए, और उसने लॉन्च पैड, स्पेस एक्स लॉन्च पैड पे उसको लगा दिया, उड़ाने के लिए तैयार। और काउंटडाउन शुरू। 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1, और रॉकेट ऊपर गया और थोड़ी दूर जाके बॉम, हवा में फट गया और पहला रॉकेट पूरी तरह तबाह हो गया। लोग हंसने लगे। इलॉन मस्क फिर चुप रहे, फिर मेहनत की, रात दिन जागे, दूसरा रॉकेट बनाया, फिर से लॉन्च हुआ, और फिर जाते ही फिर क्या हुआ? बूम, फिर फट गया। करोड़ों रुपए जल गए, खत्म हो गए। अब एलन मस्क के पास सिर्फ इतने ही पैसे बचे थे कि वो 2 रॉकेट और बना ले, बस। फिर उसने हिम्मत जुटाई, फिर रॉकेट बनाया, फिर लॉन्च किया, और फिर हो गया बूम, फिर फट गया। बच्चों, अब ये बताइए, 3 बार करोड़ों रुपए लगा करके जो रॉकेट बना रहा है और लॉन्च करता है और वो फट जाता है, तो क्या हालत हुई होगी उनकी? सेम वही हालत हुई है जो एक माउंटेन पर चढ़ने वाले व्यक्ति की हो रही है। जो एवरेस्ट पे चढ़ते हैं ना, बड़ी ऊंचाई होती है, और अभी शिखर पे पहुंचने ही वाले होते हैं, उनका पैर फिसल जाए, क्या होगा? गिर गए बेचारे, चोट आई बहुत सारी, ऑक्सीजन कम थी, दुनिया चिल्लाने लगी वापस आ जाओ, नहीं चढ़ पाओगे, मर जाओगे। लेकिन जो सच्चा पर्वतारोही होता है वो क्या करता है? वो अपने जख्मों को देखता है, उनसे सीखता है, ये देखता है कहाँ गलत खड़ा हुआ था, फिर से चढ़ना शुरू करता है। यानी आत्मविश्वास ऐसा कि गिरेंगे नहीं। आत्मविश्वास का मतलब है हर बार गिरकर फिर चढ़ना। इलॉन मस्क ने उस दिन यही किया, इसलिए आज दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर वो खड़े हैं। सोचो, 3 बार फेल होना। अब आप अपने आप को इलोन मस्क की तरह सोचना शुरू करो। 3 बार फेल होना, सारे दोस्त छोड़कर चले गए उनके, बैंकों ने पैसा देना बंद कर दिया, दुनिया ने कहा अब तो मान जाओ, हार तो हार चुके हो तुम। इलोन मस्क जो है, आंखों में आंसू तो आए पर हार नहीं मानी। उन्होंने फिर कहा मैं हार नहीं मानूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं हार नहीं मानूंगा, कोशिश करता रहूंगा। और उन्होंने आखिरी अपना घर भी बेच दिया, कार बेच दी, सब कुछ बेच दिया, और फिर से पाई पाई लगा करके चौथा रॉकेट बनाया और करो या मरो की स्थिति में आ गया। पूरे विश्व की मीडिया देख रही थी। काउंटडाउन फिर शुरू हुआ, लॉन्च पैड से फिर रॉकेट ने उड़ान भरनी थी, और काउंटडाउन शुरू होते होते 3, 2, 1, रॉकेट ने उड़ान भरी, रॉकेट बादलों के पार चला गया, अंतरिक्ष में पहुंच गया। और पहली बार इतिहास में लोगों ने देखा अंतरिक्ष में रॉकेट गया और वापस भी लौट के आया। इलोन मस्क जीत गए, इतिहास रच दिया इलोन मस्क ने। तो बच्चों, आप भी तैयार हो ऐसे ही इतिहास रचने के लिए? कौन कौन तैयार है? हाथ खड़े करो, हाथ खड़े से, और मन में संकल्प लो कि हार नहीं मानेंगे। अभी बोलेंगे मेरे साथ, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। यस, हार जब नहीं तक नहीं इस मानेंगे। इस देह में हार प्राण है, मानेंगे हार नहीं। नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। नेवर गिव अप। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे बोल रहे हैं, प्रिशा पारासर, आव्या, और ये छोटी सी गुड़िया है विनीता के पास, वो बोल रही है, तनुष हार बोल रहा नहीं मानेंगे। है, और वही हार नहीं मानेंगे। ओजस्वनी बोल रही है, राघव बोल रहे हैं, सभी ने बोला हार हार नहीं नहीं। मानेंगे। ये मेरा उद्देश्य था 3 दिन आप लोगों को पढ़ाने का, कि आपके मन में एक बात पक्के से बैठ जाए कि हार नहीं मानेंगे, करते रहेंगे, करते रहेंगे। बच्चों, मैं अपने बारे में बताऊं, मैंने भी आज तक हार नहीं मानी है। आई एम 65 years old,
बट मैंने हार नहीं मानी है। मैं जब तक जीऊंगी पढ़ाती रहूंगी, आप जैसे प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मिलकर के मैं भी हंसती रहूंगी। ये मेरे जीवन का संकल्प है, और इसीलिए मैं बार बार ऐसे प्रोग्राम करती हूँ, कभी ऑफलाइन तो कभी ऑनलाइन। ऑफलाइन तो बहुत किए, अब मेरा मन था कि ऑनलाइन भी जुड़ूं, मैं पूरे इंडिया से, पूरे वर्ल्ड से लोगों के साथ जुड़ करके काम करूं, इसीलिए मैंने ऑनलाइन ये प्रोग्राम शुरू किया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? यस मैम। पढ़ना चाहेंगे मेरे साथ? आगे बढ़ना चाहेंगे? यस मैम। यस वेरी मैम। गुड, क्या बात। यस मैम। तो चलिए, अब अपने वर्क बुक एक्टिविटी आपने करनी है, जो आपने आज थर्ड डे है ना, आज थर्ड यस मैम। डे के पेज Yes. खोलो जरा, है सबके पास तो मेरे को शो करो। वाह, है बच्चों के पास, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, उसका पेज अभी आप खोलो जरा, या मैं, मेरे पास भी है शो तो मैं कर सकती हूँ। अभी दिखाती हूँ आपको मैं शो करके। कहाँ गया? हम्म तो अभी हम शो करते हैं हमारा पेज, जो पेज मैं आपसे भरवाना चाहती हूँ। ये पेज आपको दिख गया ना? हाँ, रॉकेट लॉन्च पैड। अब आपने देखना है, आप ये लाइन भरेंगे तीनों। रॉकेट लॉन्च पैड में क्या है, अपने विजन तक पहुंचने के लिए आपको पहले 3 कदम उठाने होंगे। क्या उठाने होंगे? सबसे पहले 3 कदम, वो आप अपने बारे में सोचेंगे, सब बच्चे अपने बारे में सोचेंगे कि कौन सी ऐसी बात है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, और क्या मैंने अपने आप को बनाना है जो मैं बड़े से बड़े काम कर सकूं, हार ना मानूं दुनिया में। तो सबसे पहला क्या करोगे आप? अपने लिए 3 कदम कौन से उठाओगे? आप लिख दो, यहाँ पे लिख दो, खुद ही लिख दो। एक तो ये है कि भाई फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, मोबाइल वगैरह की तरफ भागेंगे नहीं, अपने काम में लगे रहेंगे, बस सबसे बढ़िया तो यही होता है कि अपने काम से काम रखेंगे। कोई भी डिस्ट्रैक्शन हमें दूर खींच नहीं पाएगी, एक तो इस बात को ध्यान रखेंगे। वीर बेटे, इस पे नहीं लिखना, आपने अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है, कई बच्चे इसी पे लिखने लग जाते हैं, मैम मिस्टेक से है बच्चों? इसी पे नहीं लिखना होता, ठीक है, उसी पे लिखो। और फिर दूसरा, हिम्मत। तीसरा, रेगुलरिटी हो सकता है, आत्मविश्वास हो सकता है, हिम्मत नहीं हारेंगे। हाँ, सुबह जल्दी उठना हो सकता है। कुछ कदम बताओ, नया क्या करना शुरू करोगे, बस वो लिख दो इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हमारी पहली वर्कबुक हो, पहला एक्टिविटी हो जाएगी। उसके बाद दूसरी एक्टिविटी में क्या लिखा है, ध्यान से देखो जरा, क्या कहते हैं ये? द फियर फाइटर, फेसिंग द फियर। ये है डर का सामना करने वाले, डरते नहीं है, डर का सामना करते हैं। मतलब अगर आप कभी फेल हुए, फेल का मतलब सिर्फ पढ़ाई में फेल होना नहीं है, ये कोई काम आप बड़ा करने जा रहे थे, सफल नहीं हुआ, तो वो भी हो गया ना फेल होना। तो एलॉन मस्क की तरह से खुद को क्या कहेंगे? एक पॉजिटिव मंत्र क्या कहेंगे? इन्होंने क्या कहा था? हार नहीं मानेंगे, है ना? तो तुम क्या कहोगे अपने बारे में? लिखो बढ़िया सा कोई शब्द अपने लिए, पॉजिटिव बात लिखो कोई भी, कि हम कौन है। ठीक है, हम लीडर हैं, साहसी हैं, आत्मविश्वासी हैं, पॉजिटिविटी के साथ भरे हुए काम कर रहे हैं। तो जो भी आप लिखना चाहेंगे इसके अंदर पूरा लिख देंगे आप। एक शब्द लिखें कि आप अपने लिए पॉजिटिव मंत्र क्या लिखेंगे। एक्सक्यूज मी मैम। मैम हमें सेंटेंसेस में लिखना है या फिर वर्ड्स में? सेंटेंस लिख दो बेशक, एक सेंटेंस, एक कोई भी कोटेशन लिख दो आपको जो भी अच्छी लगती है, ठीक है। चलिए, मैम हाँ जी आराध्या बोलिए। ये लिख सकते हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल। यस, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर कमांडर्स। ठीक है, जो कमांडर होते हैं ना, उनके लिए सब कुछ पॉसिबल है, वो कभी हार नहीं मानते, वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल।
यस, ये थोड़ा सा दूसरे शब्दों में बोल दिया, बात तो वही है, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। वेरी गुड। चलिए, बर लिख दिया होगा यहाँ तो आपने। और अब एक डेक्लरेशन मेरे साथ करेंगे, अपना नाम लेकर के, जहां पे मैं के बाद खाली जगह वहां पे अपना नाम लिख दीजिए और बोल दीजिए, मैं सुदेश शर्मा ये शपथ लेती हूँ कि मैं अपने विजन की ओर हर दिन एक कदम बढ़ाऊंगी। आप अपना नाम लेके बोल दीजिए। ठीक है, डन। मैम डन। वेरी गुड। अब देखिए, डन हो गया तो आपने जीत लिया विजनरी अवार्ड, ड्रीम फोकस वैल्यू एक्शन। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने एक विजनरी बनने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम बढ़ा लिया है। आगे बढ़ते रहिए, दुनिया आपकी प्रतीक्षा कर रही है, दुनिया आपको देखना चाहती है, आपने वो काम किया है। तो जो एक साइंटिस्ट के बारे में एक बात और बताती हूँ। एक एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, तो उन्होंने जो है अपने साइंस के जो प्रयोग कर रहे थे, तो वो कम से कम भी 1000 बार फेल हुए। बड़े सोचने की बात है, 1000 बार। मतलब वो एक बल्ब जो बना रहे थे, वो बार बार जैसे ही बनाने लगे वो काम ही ना करे, फिर बनाने लगे फिर कोई काम ना करे। ये सारे ना वीडियो ऑन कर लो तो अच्छा रहेगा बच्चों। तो इस तरह से उन्होंने 1000 बार देखा कि अरे नहीं बना भाई, अब भी नहीं बना, अब भी नहीं बना। फिर वो सोचने लगे कि अब मैं क्या करूं। इसका मतलब 1000 तरीके मेरे गलत थे। उन्होंने क्या अनुमान, देखो क्या बोलते हैं, वो हार नहीं मानी। साइंटिस्ट हार नहीं मानते, विजनरी हार नहीं मानते। वो कहते हैं कि जिस तरीके से मैं काम कर रहा था शायद वो तरीका ठीक नहीं था, मेरे 1000 तरीके ठीक नहीं थे, अब मैं 1001वां तरीका अपनाने वाला हूं, फिर शायद काम कर जाए। फिर उसने दूसरा तरीका अपनाया और दूसरे तरीके से फिर काम बन गया। इस तरह के जो साइंटिस्ट हैं वो बार बार काम करते हैं, बार बार काम करते हैं और फिर जाकर के वो सफल होते हैं। तो आप सब भी विजनरी बनने की राह में चल पड़े हो। आपको भी एक बात समझ में आ गई है कि जो ये महापुरुष होते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते हैं, उन्होंने कुछ तो विशेष किया है। और सबसे बड़ा विशेष है कि उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनको ये पता है कि हमारे अंदर बहुत पावर है। और सबसे बड़ी पावर क्या है? सबसे बड़ी पावर कहाँ है? कंप्यूटर, ब्रेन कंप्यूटर में। कॉग्निटिव माइंडसेट। आप कुछ भी सोच लोगे ना, आप कर लोगे। आप जो सोचोगे दिमाग के अंदर कि आपको कितने बड़े से बड़ा काम कोई भी आपके दिमाग में आता है, वो सोच लिया तो आप कर जाओगे। बस सबसे पहले तो वो आना चाहिए। अब अपने दिमाग को चलाना शुरू करो कि आपने अपनी लाइफ में कितना बड़ा काम करना है, कितनी ऊंचाई पे आपने पहुंचना है। ठीक है, चलिए। अब हम जो है थोड़ा, मैं आप सब से एक इंट्रोडक्शन भी चाहूंगी। थोड़ी थोड़ी देर, आधा आधा मिनट आप सभी लगाएंगे, बोल के मुझे बताएंगे कि आप कौन है, कहाँ से हैं, कौन सी क्लास में है, मुझे फटाफट फटाफट बताते जाएंगे, मैं पिन करती जाऊंगी। सबसे पहले मेरे को कौन बताएगा? राघव। राघव, मैं आपको पिन कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगे फटाफट बोल के कि आप। हाँ, राघव। ये गुड़िया बैठी है, गुड़िया आप बोलोगे, राघव बोलेगा। अनम्यूट करो अपने आप को। मैम, भाई ने अपना नाम लिख लिया है यहाँ पर। अच्छा कोई बात, आप बताइए, आप हो ना मेन, तो आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। चलिए, शाबाश, बोलिए। My name is Saloni. I study in 5th class. वेरी गुड। कहाँ से? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र से। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश। अब आए मेरे सामने आराध्या। आराध्या, आप आइए। और आप बोलिए, आप कहाँ My, से हैं, कौन सी क्लास में हैं, फटाफट बोलिए। my name is Aradhya. I study in class 6th. और विच सिटी? Banda. कहाँ? Banda. बांदा। ओ वेरी गुड, शाबाश। चलिए, अब मेरे सामने आ रही हैं ओजस्विनी। ओजस्विनी, आप आइए, पिन अप कर दिया मैंने आपको, बताइए।
My name is Ujaswini. I study in class 5th and I live in Amravati Enclave, which is in Panchkula. And I am a visionary. वेरी गुड, विजनरी, शाबाश। मैं सभी को विजनरी देखना चाहती हूँ। चलिए, अब मेरे पास ये विनीता भिवानिया, इनके पास कौन सी बच्ची बैठी है, इसको पिनअप कर रही हूँ मैं। चलिए आइए। My name is Shaisha Agrawal. I will study in class 4. वेरी गुड, शाबाश। चलिए I अब live in Balangir. उड़ीसा उड़ीसा। में, अरे वाह, उड़ीसा से हैं। अब आएगी वर्षा गुप्ता। वर्षा गुप्ता, जरा बोलिए, अपने मुखारविंद से बोल के बताएं। My name is Aradhya. I live in Banda and I study in class 9th. 9th में, वेरी गुड, वेरी। आपको अच्छा लगा पढ़ के? आप Yes, ma'am. तीनों दिन बैठे हैं ना आप? Yes, ma'am. वेरी गुड। ये ना बहुत अच्छी सीखने की बातें होती हैं हमने बड़ों से। तो आज हमने ये जाना, आप बहुत अच्छा आपने अटेंड किया है, थैंक यू सो मच। अब अपने सामने आ रहे हैं दर्शाली विष्ट। दर्शाली, बोलिए। My name is Darshali Vist. I study in class 5th. I I am from Uttarakhand, but I live in Dokoli. वाह, डकोली में रहते, उत्तराखंड से हो, वेरी गुड, शाबाश। अब आएंगे आव्या अग्रवाल। My name is Savya Agrawal. I read in 5th standard. I am from Rajgarh, Alwar, Rajasthan. राजगढ़ अलवर, वेरी गुड। देखा, यही मजा, ये ऑनलाइन में ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अबे दूर दूर से मिल जाते हैं सभी बच्चे, हम मिल रहे, पूरा भारत जो है ना एक ही जगह पे मिल जाता है। वीर शर्मा, चलिए वीर आइए। हाँ, अनम्यूट करके बोलो बेटा। Rakesh Sharma. I am class 6. I am in Maharashtra, Chhatrapati Sambhajinagar. वाह, महाराष्ट्र छत्रपति संभाजी नगर, वाह जी वाह, आप तो पहले ही बहुत बहादुर नगर से हो, है। वेरी गुड। नक्श महाजन, नक्श भी बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है भाई हमारा। नक्श, बोलिए बेटा। Ma'am, my name is Naksh Mahajan. I am from Malerkotla, Punjab. I वाह am in class 9th. वाह, वेरी गुड बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट अब आएगा हमारे सामने, निमिषा के नाम से है मायरा। निमिषा, मायरा, हाँ जी, आइए बताइए। Good morning, everyone. My name is Mayra Kaushik and I study in 8th class. ओ वाह, आपको अच्छा लगा क्लास? Yes, ma'am. आपका अब आप कैमरा गायब हो गया है भाई। चलिए कोई बात नहीं, वेरी गुड, थैंक यू बेटा, बहुत बढ़िया। अब कौन रह गया? तनुष। तनुष, वीडियो ऑन करो। आर्यन, आर्यन आएगा, आर्यन बोलेगा अपने मुख से। चलिए आर्यन। मैम आर्यन आज ना सो गया, उसकी वजह से मैंने देखा है, उसको समझा दूंगी। ओके ओके, नींद आ गई, देखो पढ़ते पढ़ते नींद आ गई बच्चों को। और ये रितु कौशिक के नाम से कौन है भाई? रितु कौशिक के पास कौन बैठा है? My name is Hanisha. I am in class 6th from Chandigarh. वेरी गुड हनीशा, शाबाश, थैंक यू सो मच। और किसको देखें, और कौन रह गया भाई? और कौन रह गया तो हैंड रेज करो। सबका नाम आ लिया, सब बोल लिए? हाँ तनुष, यस, आइए। My name is Tanush. I study in class 5th. I am from Chandigarh. वेरी गुड, शाबाश, गॉड ब्लेस यू। चलिए, आज सभी ने हनीशा के पास कोई और भी बैठा है ना? हेजल, हेजल है शायद। चलिए, चलो सभी ने। I'm studying in class 6th. I am from Chandigarh. वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए, सभी बच्चों ने अपना परिचय दिया, सबका बहुत बहुत थैंक यू। और अभी रहते हैं, अरे ये सैमसंग एम रहते हैं भाई, अब नाम चेंज नहीं किया आपने। चलिए बोलिए, चलो सैम, आपका नाम My बताइए। name is Jagrati Raheja. I am from जागृति, Indore, class ओके, 4th. कहाँ से?
I'm from Indore, class 4. क्लास 4 में, इंदौर से। वेरी गुड, थैंक यू सो मच बेटा, गॉड ब्लेस यू। चलिए, आज 3 दिन हमने साथ रह के पढ़ा, और 3 दिन साथ रहने से क्या होता है, सभी पेरेंट्स भी यहाँ बैठे होंगे, तो मैं उनको आके थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 3 दिन हम जब साथ रहे तो हमने क्या किया है। थोड़ा हम रिकैप भी कर सकते हैं कि हमने इन 3 दिनों में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम कौन सा डे किया था? मैम डे फर्स्ट डे फर्स्ट में किसके एग्जाम्पल देखे APJ थे? अब्दुल डॉक्टर कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल डॉक्टर कलाम। एपीजे और अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम के पास क्या था? फोकस, है ना। और फोकस, सेकंड डे हमने रतन टाटा जी की बात की, जिनके पास क्या था? काइंडनेस, काइंडनेस, लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप क्वालिटी। और आज जिसके बारे में पढ़ा, उनके पास क्या था? मैम सेल्फ माइंडसेट, कॉन्फिडेंस, राइट Mindset। माइंडसेट। कॉन्फिडेंस वो भी एंड कौन सा? करेज। मार्स माइंडसेट। पृथ्वी पे रहते हुए बात मार्स की करते हैं, ठीक है। मार्स माइंडसेट ये है कि हम अपनी अपनी जो भगवान ने जो बनाया उससे भी बढ़ के हम कुछ कर सकते हैं, अपनी लिमिट को तोड़ के भी हम काम कर सकते हैं, इतना हमारे अंदर पावर है। आज हमने ये जाना, ठीक है। तो बच्चों, बहुत मुझे अच्छा लगा आप लोगों के साथ 3 दिन, मैंने बड़ा एंजॉय किया, क्योंकि मुझे वो दिन याद आ गए प्रिंसिपल वाले, कि भाई मैं स्कूल में थी तो मैं बच्चों के साथ बहुत एंजॉय करती थी। आज फिर से ऑनलाइन में आप लोगों के साथ मिलके एंजॉय किया है। और अब मैं ये चाहती हूँ कि ये मेरे सारे जो बच्चे हैं कुछ और आगे बढ़े, क्योंकि 3 दिन में बच्चों हमने सिर्फ क्या किया है? एक बीज बोया है। क्या किया है? एक बीज बोया। 3 दिन में कोई जादुई बदलाव संभव नहीं है। हो सकता है कल आप मेरी इस बात को भूल जाओगे, या भूल जाओगे, याद रखोगे? याद रखेंगे। याद रखेंगे। याद रखोगे, बहुत अच्छी बात है। याद रखेंगे। कुछ दिन याद रखोगे, फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे आप और बातें सीख लोगे, तो ये वाली बात धीरे धीमे पड़ जाएगी। लेकिन यदि आप अपने विजन माइंडसेट को प्रॉपरली अपने लक्ष्य तक पहुंचाना चाहते हो, तो आपको इस पर थोड़ा थोड़ा रोज काम करना पड़ेगा, रोज थोड़ा थोड़ा सीखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत सुंदर प्रोग्राम बनाया है, 21 दिन का। 21 दिन कंटिन्यूअस मैं आपको बहुत सारी चीजें सिखाने वाली हूँ। तो उसमें आप मेरे साथ कौन कौन चलेंगे, ये आपने सोचना है, आपके पेरेंट्स ने सोचना है। तो मैं अब पेरेंट्स से थोड़ा बात करना चाहूंगी। बच्चे अब फ्री है मेरी तरफ से, अब पेरेंट्स के साथ बात करूंगी, उनको कैसा लगा उनसे जानेंगे, और फिर वो आगे क्या विचार बनाए, हम मिलकर के क्या योजना बनाए, वो हम वो सब देखते हैं, सब ठीक है। तो अब जो पेरेंट्स साथ बैठे हैं, मैं जरा उनसे भी बात करना चाहूंगी। डियर पेरेंट्स, पेरेंट्स आए, अब कैमरे में पेरेंट्स आए। हाँ जी, वीडियो ऑन करें और पेरेंट्स सामने आए। तो और मुझे बताएं, क्या ये 3 दिन बच्चों के जो आपने देखा, एक एक घंटा हम पढ़े, तो वो कैसे रहे? क्या आपने खुद ने देखा कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे कुछ सीख रहे हैं? यस मैम, ये सारी चीजें बच्चों को संस्कार वाली चीजें होती हैं। हमें जनरली टाइम नहीं मिलता है ये सब करने का, और यस, जरूरत होती है इस तरह की चीजों की, ऐसी क्लासेस कोई ले। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, और मैं चाहूंगी कि मेरा बेटा जो है साथ में आगे बढ़े कोच में। वेरी गुड। तो अब मैंने ये देखा कि स्कूल में अलग से ये चीजें पढ़ाने का टाइम ही नहीं होता है टीचर्स के पास। वो मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, और अपना हिंदी पढ़ा देंगे, और ये सब साइंस वाइंस पढ़ा देंगे। लेकिन ये चीजें बच्चों के साथ इस तरह से उनको एक विजन माइंडसेट बनाते हुए आगे ले जाना, ये सब स्कूल में टाइम नहीं होता है। मैंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम किए, उनमें बच्चों में ये गुण जब विकसित होते देखे, स्कूल में भी एक्सेल कर गए वो बच्चे एकदम से ग्रो, स्कूल में बिल्कुल अलग ही नजर आते हैं वो बच्चे, उनका तरीका बोलने का, बैठने का, सब अलग नजर आता है। अच्छा, और कोई पेरेंट्स शेयर करना चाहेगा? उनको कैसा लगा अपने बच्चे के 3 दिन जो हमारे साथ रहे?
फिर मैं आगे का प्रोग्राम बताती हूँ। फिर मेरे साथ कौन जुड़ता है। ओजस्विनी ओजस्विनी ने बड़ा एंजॉय किया इसमें जो ये सुनने को मिला, और रसवनी के पापा बोल रहे हैं। चलिए बताइए, आपने देखा इसको? हाँ हाँ, इसने बड़ा एंजॉय किया और पार्टिसिपेट किया, और नए आइडियाज भी आए इसके, और काफी अच्छा लगा। बच्चा इतना मन लग अगर के मैं इसी तरीके से अलग- आपके बच्चे को 21 दिन तक पढ़ा दूं तो क्या लगता है आपको, कुछ चेंज आएगा? हाँ, इसमें बहुत चेंज आएगा। बच्चे का हैबिट जो है बड़ा अच्छा भी होगा इससे, और कहीं और जो डिस्ट्रैक्शन होता है बच्चे का, थैंक के यू। बजाय एक अच्छा अल्टरनेट बच्चे को मिलेगा। ठीक है, थैंक यू। जरूर इसका फायदा है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। चलिए, और कोई पेरेंट? ये रितु कौशिक बैठी हैं, और कौन बैठे हैं? रितु, आप बताएंगे, आपके बच्चों ने अटेंड किया है? हाँ जी, उन्होंने बहुत अच्छे से अटेंड किया है। मेरे को बोला था, पर उनको याद आ रहा था न्यू स्टोरी सुनने को मिलेगी, और बहुत अच्छे वे से आपने समझाया है इसके बारे में। जो साइंस है ये वो बहुत अच्छे से सुना इन्होंने, और ये नॉलेज गेन हुई है। तो नेक्स्ट टाइम इट विल बी अ गुड एक्सपीरियंस, ये सीखेंगे। चलो, बहुत अच्छा रहा ये चीज इनके साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और पे नक्श महाजन के मम्मी पापा बैठे हैं। नक्श ने काफी पार्टिसिपेट किया है। नक्श के पापा मम्मी में से कोई बोलना चाहेगा? अनम्यूट करके। हाँ हाँ, ठीक है। हाँ जी मैम, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा आपका, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया है। हाँ जी, थैंक यू मैम। चलो, थैंक यू सो मच आपको भी। चलिए, सैमसंग एसएम ने भी अनम्यूट किया हुआ है। हाँ, बोल सैमसंग सकते एसएम बोले भाई, कौन बोलना चाहता है यहाँ पे? सैमसंग एसएम के कौन बोले? पेरेंट्स में से कौन है? हैं? या तो गलती से अनम्यूट हुआ है। अच्छा अच्छा, नहीं, कोई भी बोलना चाहे बोल लें, ठीक है, नहीं फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब मैं आगे थोड़ा सा, जो मैंने आगे की मेरी प्लानिंग है वो मैं बता दूं, क्योंकि बीइंग टीचर, बीइंग प्रिंसिपल, मेरा बड़ा रहता है कि बच्चों को क्या समझ में आना चाहिए और क्या लाइफ बननी चाहिए। वो बार बार रिटायरमेंट के बाद भी मेरा जो अंदर से जो लगन है ना बच्चों के प्रति, वो कम नहीं होती है। मैं फिर कोई ना कोई प्रोग्राम बच्चे के लिए लेके आती हूँ। तो अब जो हम करने वाले हैं आगे, ये तो एक शुरुआत थी। इस सफर को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास बहुत बड़ी योजना है। अभी तो एक पहला प्रोग्राम है, 21 दिन का विजन मिशन कोर्स मेरे पास है। जो बच्चे हर रोज हम बच्चों के जो सुपर कंप्यूटर दिमाग है उसको ट्रेन करेंगे। एनएलपी की बहुत सारी टेक्निक्स ऐसी होती हैं, उनमें भी हम बच्चों को उनके फोकस पे, उनके अटेंशन पे, उनके जो प्रोक्रेस्टिनेशन की जो आदत है उसको दूर करने में, और उनका एक, अगर बच्चों का फोकस शार्प हो जाए ना तो उसको बाकी चीजें नहीं दिखती हैं कुछ भी, हमें वो चाहिए। आज बच्चों में वही बात रह जाती है कि बच्चों को कई चीजें दिख रही होती हैं, लेकिन हमने उसको एक के ऊपर टिकाना है कि बच्चे उसी अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जाएं। और बच्चों के अंदर देखो, उस 21 दिन में क्या क्या हम रिजल्ट लेके आने वाले हैं वो मैं आपको जरा शॉर्ट में बता देती हूँ। जो बच्चे स्टेज से फियर करते हैं, डरते हैं, स्टेज पावर तक लेके जाना है। पब्लिक स्पीकिंग के टिप्स उनको बताने हैं और उनसे बुलवाना है। यानी 100 बच्चों के सामने भी बच्चा बिना हिचकिचाए बोले, मंच पे खड़ा होके घबराए ना, अपनी आवाज से सबको प्रभावित करे। एक फोकस, अनशेकेबल फोकस होना चाहिए। तो एनएलपी की टेक्निक से हम ये भी करेंगे। दूसरा, सॉल्यूशन ओरिएंटेड, बच्चा जो भी काम करे सॉल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। ये नहीं कि हर बार ये कहे कि ये समस्या आ गई, वो समस्या आ गई, मेरे से नहीं होता। नहीं, होता है, सॉल्यूशन बच्चे के पास होना चाहिए। और एक सादगी और सेवा की भावना, सिंप्लिसिटी, ये शो ऑफ नहीं, शो ऑफ से कभी काम नहीं चलता। बच्चे को अगर मॉडर्न बनना है तो माइंड से बनिए, टेक्नोलॉजी से बनिए, अपनी बुद्धि से बनिए। ये मेरा हमेशा से टारगेट रहा, और यही मैं अपने बच्चों को हमेशा ये सिखाती रही कि बच्चों यहां से बदलो, शो से कोई फायदा नहीं है। और डेली रूटीन मैं बच्चे का देने वाली हूँ एक 21 दिन का। आप देखिए, 21 दिन में कोई भी आदत पक्की हो जाती है। अगर आपको आदत चेंज करनी है, आपको पगडंडी बदलनी है, 21 दिन आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दीजिए, पगडंडी बन जाएगी। और डियर पेरेंट्स, मैं आपको सिर्फ वादा नहीं कर रही हूँ, रिजल्ट आएगा। कोर्स के पहले दिन आप बच्चे का 30 सेकंड का वीडियो बनवा के रखूंगी, और 21वें दिन फिर उसी बच्चे का लाइव भाषण आप देखेंगे, आपको परिवर्तन नजर आएगा। तो अब आप भी एक बात मैं आपसे पूछना भी चाहती हूँ पेरेंट्स से, क्या आप ये भी मानते हैं कि कंपटीशन के दौर में सिर्फ स्कूल की डिग्री बच्चे को भीड़ से अलग खड़ा करने में मदद नहीं करती है?
बच्चों को विजनरी माइंडसेट की जरूरत है। मानते हैं इस बात को? मानते हैं तो यस टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। और एक प्रिंसिपल के तौर पे भी मैंने देखा है कि सफल बच्चा वही है जो आत्मविश्वास से बोलना जानता है। बच्चा स्टेज पे खड़ा होकर के और बिना किसी हिचकिचाहट के बोले, वो बच्चा लीडरशिप में आगे आता है। वो आप भी मानते हैं? क्या ये मैं सही कह रही हूँ ये बात? आप बोल के भी बता सकते हैं, चैट बॉक्स में भी यस लिख सकते हैं। तीसरी बात, आप सब जानते हैं रविवार को बच्चे अक्सर क्या करेंगे? देर तक सोएंगे, मोबाइल टीवी में टाइम खराब करेंगे। बेहतर होगा कि वो सुबह सुबह का 1 घंटा अपने व्यक्तित्व और विकास, आत्मविश्वास को निखारने में लगा दे। हर संडे में एक मास्टर क्लास लेके आने वाली हूं, तो ये ठीक रहेगी? बोलिए यस और नो। और क्या आप सहमत है कि बच्चों के दिमाग और उनके कौशल पर किया गया निवेश किसी भी खिलौने या गैजेट पर किए गए निवेश से कहीं ज्यादा कीमती है? आप बच्चे के खिलौने ला देते हो, चाहे वो 1000 का मांग ले, 2000 का मांग ले, लेकिन उसकी बुद्धि के विकास में यदि पैसा लग जाए वो ज्यादा कीमती है। और सबसे एक्शन लेने वाला सवाल मैं आपसे जानना चाहती हूँ, अगर आपको पता है कि 21 दिन में बच्चे के अंदर बड़ा और सकारात्मक बदलाव आने वाला है, तो क्या आप एक जागरूक माता पिता के तौर पर उसे मौका देना चाहेंगे? चैट बॉक्स में हाँ लिख के मुझे बताइएगा। हाँ, जरूर देना चाहेंगे। यस, क्यों नहीं? जरूर, जरूरी है ये। पिछले 3 दिनों में आपने अपने बच्चों की आंखों में जो चमक देखी है, वो सिर्फ उत्साह नहीं है, भीतर जागता हुआ एक लीडर है। लेकिन एक रिटायर्ड प्रिंसिपल के रूप में मेरा यह अनुभव है कि बिना हाथ थामे ये चमक कल की पढ़ाई में और मोबाइल के वगैरह के बोझ में दब जाएगी। आप में से बहुत से पेरेंट्स ये भी सोच रहे होंगे कि बच्चा स्कूल में, ट्यूशनों में इतना व्यस्त है, टाइम कहाँ है उसके पास। क्योंकि मैं पहले दिन जब क्लास ले रही थी तब मुझे आ गई थी आवाज के बच्चे को ट्यूशन पे जाना है। यानी वास्तव में बच्चे बिजी है। सच तो ये है कि बच्चा खुद में व्यस्त नहीं है, बच्चा आदतों में फंसा हुआ है, कुछ रूटीन में फंसा हुआ है, और कुछ आदतें ऐसी हैं जो उसका समय बर्बाद कर देती हैं। तो यदि बच्चा फोकस करना सीख जाए, पढ़ाई में जो 4 घंटे लगाता है वो पढ़ाई 1 घंटे में करने लग जाए, तो उस दिशा में आप निवेश करना चाहेंगे कि नहीं, जिससे उसका पूरा भविष्य बच जाए? एक और सवाल आपके माइंड में आ रहा होगा कि फिर भाई पैसे लगेंगे, निवेश बड़ा हो जाता है, इतना समस्या है। जरा सोचिए, ये समस्या, डर, कम आत्मविश्वास के साथ जब बच्चा बड़ा होता है तो उसका वो नुकसान ज्यादा है, या वो कुछ पैसे जो उसके एक चॉकलेट से भी कम के खर्चा लग करके यदि वो आत्मविश्वास बढ़ा लेता है तो वो ज्यादा बढ़िया है, वहां आपके पैसे बचेंगे। तीसरा एक सवाल उठा करता है ज्यादातर पेरेंट्स का, क्या मेरे बच्चे पे असर करेगी ये बातें? ये बड़ा प्रश्न आ जाता है कई बार, हमारे क्या काम आएगी ये शिक्षा क्या काम आएगी? अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक स्टूडेंट हुआ करती थी स्कूल में, +2 में थी, बहुत शर्मीली, बोलती नहीं थी, पढ़ाई में तेज थी लेकिन बोलने से डरती थी। कभी बोल दो कि स्टेज पे आके बोलो तो ना, डर जाती थी। उसको धीरे धीरे करके जब उसको सारे सिस्टम से फॉलो उनको करवाया गया, और वो बहुत उसका खुद का ही मन करने लग गया कि चलो मैं बोलती हूँ, और वही बच्ची 2-3 महीने के अंदर तो स्टेज पर भाषण देके प्राइज लेके आ गई थी। बच्चों का अंदर से जो फियर है वो निकालना पड़ता है। क्यों है वो फियर, जानना पड़ता है उसके बारे में। तो इस यात्रा को और भी आसान बनाने के लिए मैं कुछ आपको अपना जो मैंने विजन बनाया आपके लिए, जो सोचा है, मैं आपको जरा बता दूं। इस प्रोग्राम के अंदर, वैसे तो मेरा पूरा साल भर का प्रोग्राम है, 52 के 52 सप्ताह साल के, मैं बच्चों की हैंड होल्डिंग के साथ हर संडे एक मास्टर क्लास देती हूँ, उसमें मैं साथ जोड़ना चाहती हूँ। उसके बाद जो बच्चा शुरू में मेरे पास एनरोल करता है उसको 21 दिन का लगातार क्लास देती हूँ, तो उससे फिर बच्चे का 21 दिन में ही बहुत परिवर्तन नजर आ जाता है। तो आप चाहेंगे तो इसके लिए
क्या करना होगा आपको, मैं जरा एक बार मेरा दिखा दूं, जो मैं अक्सर किया करती हूँ, एक बार पीपीटी शो करके, फिर आप सोचना आप लोग को क्या ठीक लगेगा। आपकी अपनी मर्जी होगी, कोई आप पर कोई फोर्स नहीं, कुछ नहीं, मैं तो अपनी योजना बता रही हूँ, ठीक है। 3 दिन में कोई जादुई बदलाव तो हो नहीं सकता, सिर्फ पौधा लगाया जा सकता है, पौधे पर पानी उसको जमाया जा सकता है, बीज को हमने बीज को तो जमा दिया, अब बच्चों के अंदर वो भाव तो जागृत होने शुरू हो गए, ये आपने देखा है। 3 दिन में बीज लग गया और 21 दिन में उसकी दिशा बनेगी, वो पौधा बनेगा, और फिर वही पौधा आगे बढ़ करके फलदार वृक्ष भी बनेगा। अगर उसको पूरा साल हमने फॉलो करवा लिया तो वही फ्रूटफुल हो जाएगा। सोच बदलो, बच्चा बदलेगा, बिलीव ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जो आप ये कहते हैं ना बच्चा बात नहीं मानता, जिद्दी है, ये सब बातें, ये सब चेंज हो जाएगा। ये सब आप खुद ही कहने लग जाएंगे। उसके दिमाग को एक नए सॉफ्टवेयर अपडेट की जरूरत है, सही कमांड की जरूरत है, पाथवे गलत बना उसको चेंज करने की जरूरत है, उसके रिस्पॉन्स पैटर्न को बदलने की जरूरत है। जो बच्चा ये कहता है मुझसे नहीं होता, मैं नहीं करता, कई बार बच्चों में ये बातें आने लग गई हैं। हमारा ये होता है कि बच्चा ये जवाब ना दे कभी भी, मुझसे नहीं होता। अगर वो ऐसा जवाब देता है तो वो विजनरी नहीं है, वो हार मानने वाला बच्चा बन गया। फिर हम उसके इस पैटर्न को चेंज करना चाहते हैं कि नहीं, ये तो कर ही नहीं सकते, हर इंसान जो चाहे कर सकता है। तो ये चीज को हम चेंज करते हैं, उसमें ऐसी टेक्निक्स हैं, ऐसे ऐसे मेडिटेशन पॉइंट्स हैं, विजुअलाइजेशन पॉइंट्स हैं, उनके स्टेट चेंज करने के पॉइंट्स हैं, उन सब की मदद से। तो 3 दिन में जो बीज बोया जाता है वो तुरंत बदलाव की शुरुआत करता है, और 21 दिन में वो दशा बदलने लगता है। तो क्या आप 21 दिन में अपने बच्चे की दशा बदलने की आप अपना सोचे। मैं चाहती हूँ कि वास्तव में डेडिकेटेड बच्चा आए, बस तो मैं उसके साथ खड़ी हूँ, कोई जबरदस्ती नहीं है। सोच लो, पर 1 महीना और बच्चे का भविष्य, उसके अंदर कुछ न कुछ योगदान हमारी तरफ से हो जाना, ये आपने सोचना है। मैं चैट बॉक्स में ही इसका वो डाल देती हूँ लिंक, या ग्रुप में डाल दूंगी अगर आप, तो कौन कौन तैयार हैं। मैं कुछ यस मैम। मैं हाँ कुछ जी, बातें इंटरेस्टेड। और कहना हाँ, चाहूंगी अच्छा हो, सभी पेरेंट्स से। यस यस, बोलिएगा प्राची। हाँ, मैं भी एक टीचर हूँ, और आज की जनरेशन को पढ़ाना इज नॉट इजी। और सिर्फ टीचर की तरह नहीं, एज अ पेरेंट भी आज की जनरेशन को संभालना, हेड्स ऑफ। बिकॉज आज के बच्चे हर मिनट में कुछ नया चाहते हैं, राइट। अब ये डिजिटल स्क्रीन एक्सपोजर समझें कि हमारी जो माइंड की वायरिंग हो गई है ऑलरेडी। लाइक अगर आज आपका बच्चा 10-12 साल का है तो आप अच्छे से समझ सकते हो कि ही हैज बिन ग्रोन अप, ब्रॉट अप इन द एरा ऑफ डिजिटल एम्पावरमेंट, राइट। तो 2005 के बाद से जैसे स्मार्टफोन्स का कल्चर स्टार्ट हुआ, और ये हमारी जनरेशन तब के बाद की ही है, और ये जनरेशन क्योंकि बहुत फास्ट डिजिटल एक्सपोजर के साथ बढ़ रही है, तो देयर माइंडसेट इज डिफरेंट फ्रॉम अस। तो इस माइंडसेट को एवरी टाइम दे नीड अ फ्यूल, उनको कुछ चाहिए, कोई एनर्जी उनके अंदर, उसको चैनलाइज करने के लिए उनको कोई टास्क चाहिए। अदरवाइज वो हर, आप उनको अगर फोन नहीं दें या कुछ नहीं दें या बिजी ना रखें कहीं चीजों में, एक्टिविटीज में या स्पोर्ट्स में, तो वो बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड दिस थिंग कि मम्मी मैं बोर हो रहा हूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ बताओ। मतलब द किड्स आर लाइक दिस नाउअडेज, एंड इट इज नॉट देयर मिस्टेक, इट्स अ चेंजिंग टाइम। तो टाइम के हिसाब से पेरेंटिंग नीड्स टू बी चेंज्ड, राइट। तो मैम के साथ में एक सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि वो एज ए ग्रैंड पेरेंट बच्चों के भले को सोचते हुए इस प्रोग्राम के साथ, और अपने आप देखिए वो 3 जनरेशन से, मतलब वो अगर देखा जाए तो पुरानी जनरेशन है, लाइक, बट उन्होंने हमें हमारी जनरेशन के हिसाब से और हमारे बच्चों को उनकी जनरेशन के हिसाब से समझाने के लिए ये प्लान बनाया, एंड दिस वर्कड वेरी वेल, वर्कड वेरी वेल। सो आई रिक्वेस्ट पेरेंट्स कि इसको, ये बहुत ही माइनर सा इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट भी नहीं कहूंगे, इट्स अ फीस ऑफ योर कमिटमेंट, इट्स अ फीस ऑफ योर कमिटमेंट, योर चिल्ड्रंस कमिटमेंट। बिकॉज उनको अगर लाइफ में एक्चुअली वैल्यूज के साथ आप चाहते हैं वो ग्रो करें, कॉन्फिडेंस के साथ ग्रो करें, तो उनके माइंड्स को एक
क्लियर विजन, एक क्लियर डायरेक्शन देना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप जानते हो कि जब रील्स चलती हैं तो एक रील के बाद बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की रील आती है, उसके बाद बिल्कुल डिफरेंट जॉनर की रील आती है। तो बच्चा ऐसे डाइवर्सिफाइड वर्ल्ड में आज के टाइम पर सरवाइव कर रहा है, तो हमें उन्हें डाइवर्सिफाइड नहीं छोड़ना है, हमें उनको एक फोकस देना है। सो ये एज अ पेरेंट हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों को सही दिशा दे पाए। अदरवाइज तो पेरेंटिंग इज लाइक इट्स नॉट कि बच्चे को खिला दिया पिला दिया बड़ा कर दिया स्कूल भेज दिया, नो। एंड बीइंग अ वर्किंग पेरेंट, आज के टाइम पे मोस्टली बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग, तो हमारे पास सच में टाइम नहीं है, एंड मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग